Hello everyone, I'm Dr. Swadesh Kumar. I'm head of the emergency department, Narayana Hospital, Gurugram. And on this World Hepatitis Day, we will discuss about hepatitis, its misconceptions, myths, and other how they spread. We have different types of hepatitis. We'll talk about all of them. And we have panel of doctors with us. We have Dr. Sanjay Goja with us. He is director and head of liver transplant unit of Narayana Health. And I have Dr. Mridul with us. He is a senior consultant and he is a pediatric hepatologist and gastroenterologist. And we have Dr. Naveen with us. He is a gastroenterologist and hepatologist. So we'll start with Dr. Sanjay Goja. Dr. Sanjay Goja does not need any introduction. He has been in this field for a long time. So, Dr. Goja, we'll start with what is hepatitis? Let's have a clear view to our viewers. Hepatitis is actually inflammation of the liver. Common language में बोलेंगे सूजन है लिवर में. इनके कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और कई सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं. कई कबार इन्फेक्शन के बगैर भी हो सकता है, जैसे इस्कीमिक हो सकता है, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस हो सकते हैं. बट जो कंसर्न है, मेनली जो कंसर्न है वो है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस का, जिसमें कॉमनेस्ट ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, जिसमें आते हैं हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस एंड ई वायरस. हेपेटाइटिस ए और ई वायरस जो हैं वो उनका जो यूजुअली होता है वो इन्फेक्टिव होते हैं पानी से, खान पीने से, और दूसरे वायरस जो हैं वो ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं. इनका नॉलेज हेपेटाइटिस का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या पेशेंट खुद ही क्योर हो जाएगा, क्या हमें कोई ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्या ये इन्फेक्शन के बाद इंस्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट ये क्रॉनिसिटी की तरफ जाएगा कि लिवर अल्टीमेटली डैमेज कर देगा. ये सब क्वेश्चन जब किसी को हेपेटाइटिस होता है, आदमी को कैसे लगता है हेपेटाइटिस, उसको जॉन्डिस समटाइम्स होने लग जाता है, स्लाइटली पेन होने लग जाता है पेन में, तो उसको ये हमेशा दिमाग में आता है कि वेदर it will be acute onset which will subside on its own, does it need any treatment, and will it go to the chronicity. These are three basic fundamentals why we need to know about hepatitis. And one and more important is कि ये इनमें कई सारे जो वायरस होते हैं ये ऑन्कोजेनिक वायरस होते हैं. अगर एक बहुत दिन तक रहेंगे तो कैंसर पैदा कर सकते हैं. तो हमें इसीलिए इनका ज्ञान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत जो जानकारी दी कि हमें इसके बारे में क्यों जानना जरूरी है, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड अभी जैसे हम वी टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, कुछ खाने पीने से फैलते हैं, कुछ अदर मोड्स हैं. डॉक्टर मृदुल से पूछना चाहेंगे. डॉक्टर मृदुल, हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में थोड़ा बताइए, क्या होता है, कैसे फैलता है, कितना कॉमन है. Yes, hepatitis A or E in India, particularly in our country, is very common, particularly in children and adolescent age group. These viruses are notorious. This usually cause short-term disease and mostly acute disease. In our medical terminology, you say this hepatitis and acute liver failure. This hepatitis usually these are mild, particularly if the children age is less than 2 years, and 2 to 5 years it also causes mild disease, usually jaundice, usually mostly jaundice, and liver failure usually occurs in only small percent, up to 1 to 2% only liver failure. And these two viruses usually transmitted through the contaminated food and water, usually we call fecal-oral routes, and usually this transmit with contamination of food, particularly street side food, contaminated waters, like fruits which are not washed adequately, and the commonly in our North Indian food like street side food like golgappa, आइसक्रीम, these are the most common causes of transmission. खासकर आजकल जो वेदर है, बारिश का मौसम, तो लोग काफ़ी शौक रखते हैं. डॉक्टर मृदुल, कैसे पता लगाएंगे कि
कैसे जांच, क्या सिम्टम्स उसके होते हैं? Symptoms usually in phase wise. Usually first after infection this virus usually mild fever like viral fever like fever, pain abdomen, vomiting, decrease appetite. बच्चा यूजुअली खाने के लिए रिफ्यूज़ करता है, जो भूख नहीं लग रहा है, पेट में दर्द होता है, उल्टी होता है बच्चे को. Sometimes can have diarrhea, loose stool also. After this 5 to 6 days after this usually child develop jaundice. Jaundice कैसे पता लगता है? Usually parents says yellowish discoloration of eyes, sometimes yellowish discoloration of urine. These are the usual manifestation. But in rarely 1 to 2% cases after this jaundice episode, which patient usually develop liver ये failure. बात मैं थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे कंप्लेंट करते हैं उनके पेरेंट्स की, उनको भूख नहीं लग रहा है, तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑल्सो वी शुड कीप वन थिंग इन माइंड, यस इट कुड बी Viral पीलिया hepatitis. जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, वो हो सकता है। हो सकता है, जी, yes. जी। हेपेटाइटिस हो सकता है. ओके, डॉक्टर संजय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये हेपेटाइटिस ए एंड ई, हम बात करेंगे लीवर फेलियर की, क्या ये भी लीवर फेलियर की तरफ जा सकते हैं? हाँ जी, ये रिस्क तो होता ही है, आल्दो बहुत ही कम रिस्क होता है हेपेटाइटिस ए में, ये बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। 2-3 तरीके हैं इसको समझने के। एक तो वायरल डिजीज़ एज सच ही एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है। एक्यूट लिवर फेलियर किसको हम बोलेंगे कि जिसमें जॉन्डिस बहुत बढ़ जाएगा, जो खून के जमने की क्षमता इतनी ख़राब हो जाएगी कि वो नॉन रिकवर, उसके कोई क्राइटेरिया होते हैं। देन आदमी का सेंसोरियम बदल जाए, मतलब ड्राउजीनेस हो जाए, बेहोश हो जाए, ये सब एक्यूट वायरल डिजीज़ खुद कर सकते हैं, आल्दो बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन कई कबार क्या होता है कि एक कारण है हेपेटाइटिस, जो कॉमनेस्ट कारण है, वन ऑफ द कॉमनेस्ट कारण है केमिकल, जैसे अल्कोहल कोई ले रहा है बहुत देर से और उनको सुपर एडेड ऊपर से हेपेटाइटिस ए खराब पानी पीने से हो गया, तो उनको एक अलग सी पिक्चर हो जाए, उनको पहले ही लिवर डैमेज हो जाता है और ऊपर से अगर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो जाए तो डबल हिट हो जाता है, तो दे कैन गो इनटू द एक्यूट लिवर फेलियर। देन जैसे हेपेटाइटिस ई है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उनके चांसेस गोइंग इनटू हेपेटाइटिस फुलमिनेंट फेलियर, एक्यूट लिवर फेलियर जिसको बोलते हैं, उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यूजुअली क्या होता है, जो एक्यूट लिवर फेलियर जो हेपेटाइटिस ए से होता है, वो बगैर कोई ही ट्रांसप्लांट के यहाँ यूजुअली रिकवर कर जाते हैं, खुद ही रिकवर कर जाते हैं, आईसीयू में केयर से, इंटेंसिव केयर से ठीक हो जाते हैं टाइम। लेकिन एक पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमें लगता है कि ये अगर रिकवर नहीं कर पाएंगे, अब इनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या कैसे प्रोग्रेस करते हैं डेली के डेली, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं। बैकग्राउंड लिवर डिजीज़ तो नहीं है, जैसे किसी को ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, उसके ऊपर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन हो गया, अल्कोहल लिवर डिजीज ऊपर हेपेटाइटिस है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको हेपेटाइटिस ई हो गया, तो ये ज़्यादा संभावना बनाते हैं कि आपको ऐसी लिवर फेलियर होने की जो खुद से ना रिकवर हो जाए, जिसको आगे आपको ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ सकता है। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया डॉक्टर संजय गोजा। डॉक्टर मृदुल से पूछना चाहूँगा, हमें शक होता है कि इनको पीलिया हो सकता है, हेपेटाइटिस ए या ई में कुछ हो सकता है, हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्या टेस्ट हम इसके लिए करते हैं जिससे कि पता लग जाए कि हाँ इसको कंफर्म है? हाँ, यूजुअली जब लक्षण से हमें पता चले जो हेपेटाइटिस ए हो सकता है और ई हो सकता है, तो हम यूजुअली सिंपल ब्लड टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, हीमोग्राम, और वायरल हेपेटाइटिस ए और ई डायग्नोसिस करने के लिए एक सीरम एंटीबॉडी हमें टेस्ट करना पड़ता है, IgM एंटीबॉडी। वो ब्लड टेस्ट से हमें पता चल जाता है हेपेटाइटिस ए और ई है। जी, ये तो जब कंफर्म हो जाता है, वैसे तो क्लिनिकली ही इसके लिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्लिनिकली हमको काफ़ी हद तक पता चल जाता है कि इनको हेपेटाइटिस है, पीलिया है, और कंफर्म करने के लिए हम उसको टेस्ट कराते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई होते हैं, हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में हम जानना चाहेंगे डॉक्टर नवीन से। कैसे फैलता है, कैसे इसका बचाव होता है, क्या लक्षण होते हैं इसके? अच्छा, डॉक्टर मृदुल ने हमें हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में काफ़ी ज्ञान दिया। अब ये हेपेटाइटिस बी और सी, ये एक अलग कैटेगरी का वायरस हो जाता है, जो जो इन्फेक्शन करता है, क्रॉनिक इन्फेक्शन करता है, यानी कि एक बार जब शरीर में आ जाता है तो ज़्यादातर केसेस में ये इन्फेक्शन हमेशा के लिए लीवर में जकड़ लेता है। तो ये धीरे धीरे कई साल, 10 साल, 20 साल में लीवर को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकता है। जी,
ये कैसे फैलता है डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी, हम भी जानना चाहेंगे कि ये कैसे फैलता है हेपेटाइटिस बी और सी इन पर्टिकुलर। ये एक अलग कैटेगरी वायरस है, तो ये खाने पीने से नहीं फैलता है। ये सिर्फ या तो प्रेग्नेंट माँ से उसके बच्चे में, या तो अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस करने में, या फिर इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होने में, या हीमोडायलिसिस मशीन जिसमें पहले से इन्फेक्शन है उस पर डायलिसिस होने से, इन तरीके से ये फैलता है हेपेटाइटिस बी और सी। जब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस की, ए बी सी ई, तो हेपेटाइटिस बी और सी कितना डिफरेंट है हेपेटाइटिस ए और ई से, कितना सीरियस है? ये जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है ये धीरे धीरे लिवर को कमज़ोर करता है, और हेपेटाइटिस ए और ई होता है उसका कोर्स थोड़ा छोटा होता है। वो इन्फेक्शन आएगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, कुछ हफ्तों में ठीक हो जाएगा, लेकिन ये हेपेटाइटिस बी और सी बिना दवाइयों के ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकते। कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं हेपेटाइटिस बी और सी की? हाँ, ये बाद में जाकर के लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर या लिवर का कैंसर भी कर सकते हैं। जी, तो जैसा कि आपने जाना कि हेपेटाइटिस बी और सी कैसे फैलता है, इसका तरीका थोड़ा अलग है हेपेटाइटिस ए और ई से, और इसके लक्षण भी थोड़ा सा लेट आते हैं और उनके कॉम्प्लिकेशंस भी। कैसे पता लगाते हैं डॉक्टर साहब कि इनको कंफर्मेटरी टेस्ट क्या सेम उसी तरह होता है, इसके लिए कुछ अलग टेस्ट होता है? इन्फेक्शन का तो पता ब्लड टेस्ट से चल जाता है, बट हमें क्योंकि लीवर पे कितना असर अब तक पड़ा है उसके लिए और जो टेस्ट होते हैं फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब करा करके देखना पड़ता है। हेपेटाइटिस बी प्रेगनेंसी में या फिर न्यूबॉर्न्स में कैसे मैनेज करते हैं डॉक्टर मितुल, थोड़ा बताइए प्लीज। यस, इन बच्चा में जो हेपेटाइटिस बी है मोस्टली पेरीनेटल ट्रांसमिशन हम बोलते हैं। Okay. यूजुअली प्रेग्नेंट मदर से उनका बच्चा में यूजुअली ट्रांसमिट होता है। तो जो कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर हेपेटाइटिस बी डायग्नोसिस हुआ है, जो बच्चा में ट्रांसफर ना हो, बच्चा इन्फेक्टेड ना हो, इसलिए हमें ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड हमें उसको ट्रीट करना होता है। तो हमें डिसाइड करता है हमें ट्रीट करना है नहीं करना है, वो लिवर फंक्शन टेस्ट से और वायरल रेप्लिकेटिंग मार्कर से कितना लोड है वो देख के हमें डिसाइड करते हैं। यूजुअली कोई लिवर डिजीज अगर मदर में नहीं है तो हम 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में एंटीवायरल स्टार्ट करते हैं, सो दैट वायरस ट्रांसमिशन इज रिड्यूस टू द बेबी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और वो दवाई यूजुअली हम डिलीवरी का 12 हफ्ता तक हम चलाते रहते हैं। और ये भी हमें ध्यान देना है बच्चा में ट्रांसमिशन ना हो, ड्यूरिंग डिलीवरी हमें कुछ कुछ प्रिकॉशन लेना होता है, जैसे सिजेरियन सेक्शन हम बोलते हैं। और जब बच्चा प्रेग्नेंट लेडी को हम ट्रीट करते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम में भी वायरल ट्रांसमिशन का चांस कम हो जाता है। और जब बच्चा जन्म होता है उसका बाद हमें वैक्सीनेट करना होता है बच्चे को, और एक इंजेक्शन IVIG देना होता है बच्चे को विदिन 12 आवर्स ऑफ बर्थ। और वैक्सीन कोर्स हमें टोटल कंप्लीट करना होता है 6 महीने तक। उसके बाद फिर हमें वैक्सीनेशन इफेक्टिव हुआ है नहीं हुआ है वो चेक करना होता है ब्लड टेस्ट से। और ये ध्यान रखेंगे कोई बच्चा अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर से जन्म लिया हुआ है, उनको एडिक्वेटली ट्रीट किया हुआ है, 95% बच्चे में इन्फेक्शन नहीं होता है। ओके, ठीक। क्या वैक्सीनेशन हर एक हेपेटाइटिस के लिए है, जैसे आपने बताया हेपेटाइटिस बी, क्या बाकी हेपेटाइटिस के लिए भी वैक्सीनेशन का कुछ है उपचार या? यस, हेपेटाइटिस ए और बी में वैक्सीनेशन है। हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन हमें बच्चा में देना होता है और एडल्ट में भी दिया जाता है, जिसमें क्रोनिक लिवर डिजीज है उसमें दिया जाता है। यूजुअली 2 कोर्स होता है 6 महीने का इंटरवल में, और बच्चा में फर्स्ट डोज हमें 1 साल का उम्र पे देना होता है, उसके बाद 1.5 साल का उम्र में सेकेंड डोज देना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ई और सी के अगेंस्ट में हमारा कोई वैक्सीन नहीं है आज तक। सो इसके लिए थोड़ा सा हमको ज़्यादा केयरफुल लेना पड़ेगा, प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हाँ, हमें जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये कैसे फैलता है और हम उसका प्रिकॉशन लेके चलें, क्योंकि इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इन सब के बावजूद जो भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हमें जितना नॉलेज होता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि पेशेंट उस स्टेज पे आ जाता है कि उसको लीवर ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ता है। डॉक्टर गोजा, थोड़ा डिटेल में हमको बताइए कि ट्रांसप्लांट का क्या रोल है हेपेटाइटिस में, कब होता है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए?
जो हम ट्रांसप्लांट का इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, जो वायरल हेपेटाइटिस में रोल है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, पहले बताया, फर्स्ट जो होता है, अगर वायरल डिजीज़ से एक्यूट लिवर फेलियर हो जाए, जैसे लिवर फेल इस स्टेज पे, और वो हमें लगता है कि रिवर्स नहीं हो जाएगा, जिसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें एक सबसे वो होता है दिमाग में सूजन आने वाला पैरामीटर होता है, या उसकी वजह से खतरा बन जाता है। एक तो एक्यूट लिवर फेलियर, दूसरा जैसे डॉक्टर नवीन ने बताया भी कि ये जो वायरल डिजीज है, अल्टीमेटली ये कुछ वायरस जैसे बी एंड सी, ये स्लोली लिवर को डैमेज करते हैं ओवर द टाइम, और एक क्रॉनिक लिवर डिजीज जिसको CLD बोलते हैं बन जाता है, जिसमें लिवर सिरोटिक हो जाता है। वो सिरोटिक लिवर होने के बाद में वो एक स्टेज में हो जाता है जिसको बोलते हैं डीकम्पनसेटेड स्टेज, जिसके लक्षण जैसे होते हैं कि पीलिया हो जाए, वो पेट में पानी होने लग जाए, आदमी के होश में बदलाव होना शुरू हो जाए, बार बार आदमी को ब्लीडिंग होने शुरू हो जाए। ये जो डिकम्पनसेशन आने लग जाता है क्रॉनिक लिवर डिजीज़ में, इसका भी इलाज जो है अल्टीमेटली लिवर ट्रांसप्लांट करना है, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा जब सिरोटिक लिवर हो जाता है, ये इरिवर्सिबल होता है, इट डजंट गो बैक टू नॉर्मल। और एक स्टेज ऑफ सिरोसिस जब ये डिकम्पनसेट हो जाता है, नॉट एवरी सिरोटिक पेशेंट नीड्स लिवर ट्रांसप्लांट, जब ये डिकम्पनसेट हो जाता है और एक ग्रेड में जैसे चाइल्ड C में चला जाए, तो तब ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा जो ऐसे हमने अभी बताया है कि ये जो वायरस होता है, जैसे लिवर डिजीज़ होता है, कुछ इनमें वायरस होते हैं जिनको ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं, जो खुद से वायरस कैंसर, जैसे हेपेटाइटिस B वायरस है, या जो ये सिरोसिस करते हैं, एक सिरोसिस एक उपजाऊ ज़मीन बन जाती है, इट इज़ अ फर्टाइल सॉइल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर। सो अगर ऑन्कोजेनिक वायरस भी नहीं, हेपेटाइटिस C सिरोसिस हो गया किसी भी का, उसमें कैंसर बनने की संभावना हो जाती है। जब वो कैंसर हो जाता है, उसमें भी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एक स्टेज पे होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट ही होता है। चौथा मैंने जो बताया है कि अगर आपका लिवर डिजीज इतना एडवांस नहीं है, लेकिन आपको डबल हिट हो गया, आपको मान लो अल्कोहल से हेपेटाइटिस है, या आपको हेपेटाइटिस C, और ऊपर से आपको नए वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से जो आपकी स्टेबल लिवर फंक्शन थी वो एकदम डाउन हो गई, डिकम्पनसेशन में चले गए, तब आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसमें आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डॉक्टर गोजा आपने बताया कि ये सब चीज़ें अलग अलग तरह के हेपेटाइटिस लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ कब बढ़ सकते हैं। तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है डॉक्टर गोजा कि क्या एक ऐसा पेशेंट जिसको पास्ट में हेपेटाइटिस हो चुका है, क्या वो डोनर बन सकता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अभी रिसर्च में भी ऐसा रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस, जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बोला है, इसके बहुत सारे कारण हैं। हमें ये समझना पहले पड़ेगा कि इसको हेपेटाइटिस क्यों हुआ था, क्योंकि जब वो डोनर आएगा वो आपको पास्ट हिस्ट्री दे देगा, मुझे पीलिया हुआ था, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कारण। मान लो आप इनको हेपेटाइटिस A हुआ है, जिसका कोर्स बहुत शॉर्ट होता है और क्योर हो जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अल्कोहल से हेपेटाइटिस हो गया है, एंड देन ही हैज स्टॉप्ड ओवर द टाइम अल्कोहल, और उसके बाद हिज लिवर इज एब्सोल्यूट नॉर्मल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, उसका कोई उसमें ऑर्डर, एंड ही हैज स्टॉप्ड, देन ही कैन बी। हेपेटाइटिस E हुआ, वो भी इन्फेक्टिव है, शॉर्ट कोर्स है, वो रिकवर हो गया। जो कंडीशन जिसमें हमें बहुत सारा कंट्रोवर्सी, वो हेपेटाइटिस B या C में है। उसमें 2 पहलू हो जाते हैं। उसमें एक तो क्या आप लिविंग डोनर कर रहे हैं या कैडेवर कर रहे हैं, डिसीज डोनर, कितना अर्जेंसी है, वो जो रेसिपिएंट है वो किस कारण उसका लिवर डिजीज है। मान लो आपके पास हेपेटाइटिस C का डोनर है जो क्योर्ड है, जिसका लिवर नॉर्मल है, जिसमें आपने टेस्ट किया है कि लिवर में कोई सिरोसिस नहीं, उसका नॉर्मल लिवर फंक्शन, उसका वायरल लोड नहीं है, ही हैज़ बीन अंडर ट्रीटमेंट। और इधर से हमारे पास एक हेपेटाइटिस C का ही पेशेंट है जो रेसिपिएंट, देन उसमें सोच सकते हैं। लेकिन ये भी ये मोर एप्लीकेबल टू कैडावेरिक ट्रांसफर। इवन नाउ ऐसे भी वेस्ट में ऐसा है कि इवन अगर वायरल लोड भी हाई है और हेपेटाइटिस C है, अर्जेंसी है, एक्यूट लिवर फेलियर में पेशेंट है, उसको ज़रूरत है, अगर अब नहीं मिलेगा तो ही विल डाई, उसको वो लिवर लगा के पोस्ट ऑपरेटिव उसको थेरेपी पर डाल देते हैं ताकि वो रिकवर हो जाए उसका। सेम हेपेटाइटिस B का स्टैंडर्ड ये होता है कि हेपेटाइटिस B में अगर आपको वायरल लोड नहीं है, DNA नेगेटिव है, लेकिन अगर आपका कोर एंटीबॉडी, मतलब आपको
आपके इसमें ये पता है कि इनको जो हेपेटाइटिस बी हुआ है पहले, दे कैन बी टेकन एज डोनर्स बट ऑन द प्रीटेक्स्ट जो रेसिपिएंट है उसको आपको पोस्ट ऑपरेटिवली एंटीवायरल देने पड़ेंगे। लेकिन ये सब तभी संभावना होती है जब आप फैमिली के साथ बैठ के उनको ये सारा समझा देते हैं। और ये दूसरा एक इवॉल्विंग साइंस है कि, और इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितनी अर्जेंसी है। अगर आप नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इस पर निर्भर करता है। जी जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया। कई बार इमरजेंसी होती है, हमें ट्रांसप्लांट करना ही पड़ता है, ऑल्दो भी इवॉल्विंग है जैसे आपने बताया, बट हमको सब इवॉल्व करके पेशेंट फैमिली के साथ बैठ के सब डिसाइड करना पड़ता है। तो आई थिंक आज का इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे जो हमने डिस्कशन किया, डॉक्टर संजय ओझा, डॉक्टर मृदुल, डॉक्टर नवीन, थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक आप सब लोगों को काफ़ी इसका फ़ायदा हुआ होगा एंड आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।